امریکی شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ یہ آگ کہاں سے شروع ہوئی، اس پر اب تک قابو کیوں نہیں پایا جا سکا، اور ایران کی جانب سے امریکہ کو کیا پیشکش کی گئی، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لاس اینجلس سے کچھ فاصلے پر موجود وینچورا کاؤنٹی میں جھاڑیوں میں لگی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آگ سے چند گھنٹوں میں 5 ایکڑ کا رقبہ جل گیا۔ 75 فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جنہیں ہیلی کاپٹر کی مدد بھی حاصل ہے۔ کاؤنٹی حکام کے مطابق تیز ہوا کے باعث آگ تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے۔ وینچورا کاؤنٹی لاس اینجلس سے 109 کلومیٹر دور ہے۔ ادھر لاس اینجلس میں 7 جنوری کو بھڑکنے والی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ 3 مقامات پر اب بھی شعلے بھڑک رہے ہیں اور 40,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ 12,000 سے زائد عمارتیں مکمل طور پر راکھ میں تبدیل ہو گئیں۔ حکام نے نقصان کا ابتدائی تخمینہ $275 ارب لگایا ہے۔ آگ کے باعث 1 لاکھ افراد گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ مزید 87,000 افراد کو انخلا کی وارننگ دی گئی ہے۔ آگ سے پیرس سے زیادہ رقبہ جل کر راکھ ہو چکا ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے، جبکہ 30 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ آگ کے باعث خالی چھوڑے گئے گھروں میں لوٹ مار کے واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے باعث انتظامیہ کی جانب سے کی گئی کارروائیوں میں درجنوں افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پیلیسیرس میں صرف 13% اور ایچن میں صرف 27% آگ قابو میں آئی ہے۔ بدترین آگ پر قابو پانے کے لیے ہزاروں فائر فائٹرز، سینکڑوں فائر انجن، واٹر ٹینکرز اور 60 طیارے کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جیل کے قیدیوں سے بھی مدد حاصل کی گئی ہے، جو فائر فائٹرز کے ساتھ آگ پر قابو پانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی دوران ہالی ووڈ کی 95 سالہ اداکارہ ڈیلیز لاس اینجلس آتش زدگی شعلوں کی نظر ہو گئیں۔ 95 سالہ اداکارہ کی باقیات شمال مشرقی لاس اینجلس کے علاقے الٹارینا میں ان کے گھر سے برآمد ہوئی۔ لاس اینجلس میں آگ بجھانے کے لیے گلابی رنگ کا ایک کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے، تاہم ہر تدبیر ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آتش زدگی سے نقصانات پر انشورنس کمپنیوں کو $30 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، جس میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک آگ لگنے کی کوئی حقیقی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن جنگل کی آگ پھیلنے سے چند روز قبل پیش گوئی کرنے والوں نے تیز ہوا کی وارننگ جاری کی تھی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ لاس اینجلس کے جن علاقوں میں آگ لگی، وہاں آسمانی بجلی گرنے کی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ تاہم چند حالیہ میڈیا رپورٹس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لاس اینجلس میں آگ پھیلنے کے بعد 30 منٹ بعد فائر فائٹرز کے ریڈیو پر کسی کا شور سنائی دیا کہ آگ کے شعلے ایک جانے پہچانے پہاڑ سے بلند ہو رہے ہیں، جس کے جواب میں ایک فائر فائٹر نے کہا کہ آگ وہیں سے شروع ہوئی تھی جہاں یہ نئے سال کے موقع پر لگی تھی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے آرکائیو شدہ ریڈیو ٹرانسمیشنز، ویڈیوز، تصاویر اور سیٹلائٹ مناظر کے جائزے سے لاس اینجلس میں بھڑکنے والی آگ کی ممکنہ وجوہات پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی آگ وہیں سے پھیلی جہاں نیو ایئر کے موقع پر بھڑکی تھی، اور جسے فائر فائٹرز 4 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لاس اینجلس میں دیگر تحقیقات کے اداروں کا بھی یہی ماننا ہے۔ اس حوالے سے جب واشنگٹن پوسٹ نے لاس اینجلس کے رہائشیوں سے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ فائر ڈپارٹمنٹ کا نیو ایئر کے موقع پر لگنے والی آگ کے نسبت منگل کو لگنے والی آگ پر رد عمل سست تھا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے شعبہ میکینیکل انجینئرنگ کے پروفیسر اور فائر سائنٹسٹ مائیکل گولنس نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ پہلے لگی آگ سے کوئی معمولی چنگاری دوبارہ بھڑک اٹھی ہو، جس کے باعث جنگل میں آگ پھیل گئی۔ وہیں سوشل میڈیا پر بھی مختلف قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ لاس اینجلس میں آگ کسی بڑی سازش کا نتیجہ ہے، تو کوئی اس آگ کے لگنے کی وجہ کسی پرندے کو قرار دے رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق آگ لگانے کے شبے میں 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں آگ لگنے کی ٹھوس وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فیڈرل بیورو آف الکوہل، ٹوبیکو اینڈ فائر آرمز انکوائری کی قیادت کر رہی ہے۔ ATF کے عہدیدار
जोस मेरेना कहते हैं कि आग लगने की वजूहात पर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। हम जानते हैं कि हर कोई जवाब चाहता है, कम्युनिटी जवाब का हक रखती है। जॉर्ज मेरेना ने कहा कि एटीएफ मुकम्मल तहकीकात के बाद हर सवाल का जवाब देगी। एटीएफ मुकामी लॉ इन्फोर्समेंट, फॉरेस्ट सर्विस और यूएस अटॉर्नी के साथ काम कर रही है। उनका मजीद कहना था कि इंक्वायरी के अमल में कम अज़ कम 75 अफराद हिस्सा ले रहे हैं। आग भड़कने के 2 मुकामात की तलाश के लिए मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन काम कर रहे हैं। जॉर्ज मेरेना के मुताबिक मुकामी कम्युनिटी और मुमकिना गवाहों से इंटरव्यूज़ के लिए भी टीम तैनात की जाएगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट के नायब सरबरा ने कहा है कि हमें कुदरत की जानिब से रहम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे पास फायर फाइटर हैं, पानी है, हमें बस वक्त चाहिए। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि आग कब बुझेगी, इस हवाले से फौरी तौर पर सिर्फ मफरूज़े ही कायम किए जा सकते हैं। क्योंकि इसका इन्हिसार दीगर कई अवामिल के साथ साथ हवा के चलने या ना चलने और बारिश के होने या ना होने पर है। कैलिफोर्निया में बारिश का मौसम आम तौर पर दिसंबर से मार्च तक होता है और रवां साल लॉस एंजलिस में अब तक सिर्फ 0.01 इंच बारिश हुई है। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी बदतरीन आग पर काबू पाने के लिए ईरान ने अमेरिका को मुमकिना पेशकश कर दी। ईरानी खबररसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी हिलाल अहमर के सरबरा पीर हसन कोलवन ने अमरीकी रेड क्रॉस के सरबरा क्लिफ हॉलेज को लिखे गए खत में इमदाद भेजने की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि कुदरती आफात से निपटने के लिए अपने वसी तजर्बे के बायस ईरानी हिलाल अहमर मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर खुसूसी रैपिड एक्शन टीमें और रेस्क्यू सामान भेजने के लिए तैयार है। पीर हुसैन कोलवन ने क्लिफ हॉलेज को यकीन दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में वो तन्हा नहीं है। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग के बाद एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजलिस के मेयर को रिपब्लिकन जमात की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ रिपब्लिकन रहनुमाओं ने तनू और साफ तवानाई को फ़रोग़ देने की कोशिशों को मसले की वजह करार दिया है, जो मौसमियाती तब्दीली को तबाही की वजह के तौर पर बताता है। इसे ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि वो सूरत हाल का सियासी फ़ायदा उठाना चाहता है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में फायर फाइटर्स मुतअद्दिद मुकामात पर लगने वाली खतरनाक आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं और इसी दौरान कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोस देखने में आई हैं जिसमें हवाई जहाज लॉस एंजलिस आग पर काबू पाने के लिए नवाही इलाकों पर सुर्ख और गुलाबी पाउडर बरसा रहे हैं। लोगों की निगाहों को अपनी तरफ मबजूल करने वाला ये पाउडर अब लॉस एंजलिस के मुतअद्दिद इलाकों में घरों के अंदर, छतों और गाड़ियों पर पड़ा हुआ नजर आता है। ये सुर्ख और गुलाबी पाउडर आग की शिद्दत को कम करने या इसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनूबी कैलिफोर्निया में हुक्काम का कहना है कि लॉस एंजलिस और उसके अतराफ में लगी आग को फैलने से रोकने के लिए गुलाबी पाउडर के हजारों गैलन्स का छिड़काव किया गया है। आग पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इस पाउडर का नाम फोर्स चेक है, जो पैरामीटर नामी कंपनी फरोख्त करती है। अमेरिका में आग पर काबू पाने के लिए इस पाउडर का इस्तेमाल सन 1963 से किया जा रहा है और कैलिफोर्निया का डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन भी मुद्दत से इस पाउडर का इस्तेमाल कर रहा है। 2022 में शाया होने वाली एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में आग पर काबू पाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस पाउडर का ही किया गया। फोर्स चेक बनाने वाली कंपनी पैरामीटर ने हुक्काम को मशवरा दिया है कि जैसे ही हालात बेहतर हों फौरन इलाके से इस पाउडर को साफ किया जाए। कंपनी का कहना है कि पाउडर जितना ज्यादा खुश्क होगा, इसे मुकम्मल तौर पर साफ करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। कंपनी के मुताबिक गर्म पानी और डिटर्जेंट की मदद से इसे साफ किया जा सकता है, लेकिन अगर ये पाउडर बड़े रकबे पर छिड़का गया है तो इसे साफ करने के लिए बड़े प्रेशर वॉशर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोर्स चेक कैसे बनाया जाता है ये वाज़ेह नहीं, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी माजी में कह चुकी है कि इसकी तैयारी में 80% पानी, 14% नमक, रंग और कुछ केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। जहां तक इस पाउडर के शोख रंग का ताल्लुक है तो पैरामीटर का कहना है कि इसको ये रंग पायलट्स और फायर फाइटर्स को मदद देने के लिए दिया गया। अमेरिका की फॉरेस्ट सर्विस के मुताबिक ऐसा पाउडर आग को मिलने वाली ऑक्सीजन को कम करता है और इससे आग फैलने की रफ्तार भी कम होती है। ताहम माजी में इस पाउडर के इस्तेमाल पर तनाज़ात भी खड़े होते रहे हैं। 2022 में अमेरिकी फॉरेस्ट सर्विस के मौजूदा और साबिक मुलाजमीन पर मुश्तमिल इदारे फॉरेस्ट सर्विस एम्प्लॉयज फॉर एनवायरमेंटल एथिक्स ने एक मुकदमे में अमेरिकी विफाकी इदारे पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो हवाई जहाज के जरिए
जंगलात पर इस केमिकल के छिड़काव से मुल्क में साफ पानी के लिए बनाए गए कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उनका दावा था कि इस केमिकल के सबब मछलियां मर रही हैं और ये पाउडर आग बुझाने के लिए मौसर नहीं है। इसी वजह से एक ज़िलाई जज ने इस मुकदमे में इख्तियार किए गए मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया था, लेकिन अपने फैसले में उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस को इजाज़त दी कि वो पाउडर का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि इसकी इजाज़त अमरीकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने दे रखी है। ये केस कैलिफोर्निया के इलाके पैराडाइज और दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली उन बिरादरियों की तवज्जो का मरकज़ भी बना जिनकी अमलाक 2018 में लगने वाली आग के सबब तबाह हो गई थी। रवा बरस अमरीकी फॉरेस्ट सर्विस ने NPR को बताया था कि वो फूस चेक के LC 95 फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि अब आग पर काबू पाने के लिए MVPFX फार्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये जंगली हयात के लिए कम नुकसानदेह है। फॉरेस्ट सर्विस का मजीद कहना था कि उन्होंने माहौलियाती हसास मकामात पर इस पाउडर के छिड़काव पर पाबंदी आयद कर रखी है। ताहम उनका कहना था कि इस पाबंदी को सिर्फ उस वक्त नज़रअंदाज किया जा सकता है जब कोई इंसानी ज़िंदगी या आवाम की हिफाजत खतरे में हो।